بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی سورۃ الانفال کلاس 9 فیڈرل بورڈ۔ پچھلے لیسن میں پچھلی کلاس میں ہم اس سے پہلے سورۃ الانفال کا ہم نے ترجمہ شروع کر دیا تھا اور ایک آیت ایک کلاس میں ہم نے تقریباً پڑھی تھی۔ لفظی معنی، با محاورہ معنی اور کتاب کا مکمل ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے آگے ترجمہ شروع کریں گے۔ تو بچوں سے درخواست ہے کہ اپنی کتابوں کو کھول لیں، اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہر لفظ کا الگ الگ معنی ان کو تفصیل سے بتایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین، بچوں آپ اپنے کتاب پہ دیکھیے گا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو بیٹا آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ کے رکوع کے آخر میں آنے والے ایک سوال کا مکمل جواب ہے۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 آپ کے رکوع کے آخر میں آنے والے ایک مکمل سوال کا کیا ہے؟ مکمل جواب ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس میں آپ کو میں پوائنٹ لگوا دوں گا، اس کے بعد پھر جواب کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، انما المؤمنون، انما صرف، ویسے انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ المؤمنون ایمان لانے والے، ایمان لانے والے مؤمنین، الذین وہ لوگ جو کہ، الذین وہ لوگ جو کہ، تو انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو کہ، اذا، یہ لفظ اذا آپ میرے ساتھ 5 مرتبہ دہرائیں گے اس لیے کہ آگے جا کر بہت بار ریپیٹ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب۔ تو اذا کا کیا مطلب ہوا؟ جب۔ اذا ذکر، ذکر کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ذکر کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو آیت شروع سے پڑھتے ہیں، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت، وجلت کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وجلت کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ لفظ رکوع کے آخر میں جو مشکل الفاظ معنی ہیں ان میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ذکر کا مطلب، وجلت کا مطلب کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ قلوبہم، عربی گرامر، قلوب قلب ان کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، اور ہم اس کے آخر میں جو لفظ ہے یہ عربی گرامر میں ہم نے پڑھا تھا، یہ تیسرا لفظ ہے، ہوا، ہما، ہم، اور وہاں ہم نے اس کا معنی کیا پڑھا تھا؟ ہم وہ سب مرد، یہاں ہم اس کا معنی کریں گے وہ سب۔ تو قلوبہم لفظی معنی کیا ہم کریں تو ان سب مردوں کے دل، ان سب مردوں کے دل، لیکن با محاورہ معنی ان کے دل، سب اور مرد، یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں رہ جائے گا۔ تو قلوبہم ان کے دل۔ اب آیت کا ہم نے ایک ٹکڑا مکمل کر لیا، ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب جو کتاب میں ترجمہ لکھا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک، آگے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، واو کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیے۔ واو کا مطلب
اور, शाबाश, वो का मतलब क्या, और। इज़ा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। इज़ा का मतलब जब, शाबाश, अभी हमने पिछले आयत में पढ़ा था इसको। तो इज़ा का मतलब जब। वइदा, और जब, तुलियत, तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तुलियत का मतलब तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। अलैहिम, अरबिक ग्रामर की तरफ आ जाए। अलैहिम, आप बताइए कौन सा लफ्ज़ है, किस किस से मिलकर बना है? सोचिए, शाबाश। अलैहिम किस किस से मिलकर बना है? तो आपको नज़र आ रहा है कि अला और हुम से मिलकर बना है। अला का मतलब क्या था, पर। हुम का मतलब वो सब मर्द, तीसरा लफ्ज़। तो अलैहिम तीसरा लफ्ज़ हो गया, क्या माना हो गया, उन सब मर्दों पर। यहाँ इसका माना क्या होगा, उन पर। अब अरबी ग्रामर का फ़ायदा समझ आ रहा है और आपको यकीन भी हो रहा है कि वो जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर अब फ़ायदा भी उसका हो रहा है। तो वइदा तुलियत, और जब तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर। वइदा तुलियत अलैहिम, और जब तिलावत की जाती हैं उन पर, आयातुहु, उसकी आयतें, आयातुहु, उसकी आयतें। वइदा तुलियत अलैहिम, और जब तिलावत की जाती हैं यानी पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुहु, उसकी आयतें, तो क्या होता है, ज़ादतहुम ईमाना। ज़ादतहुम, इजाफ़ा हो जाता है उन लोगों में, ज़्यादती हो जाती है उन लोगों में। किस एतबार से, किस चीज़ में, ईमानन, ईमान में। तो ज़ादत इजाफ़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, हम उन लोगों का। हम मतलब अरबी ग्रामर में वो सब मर्द। तो ज़ादतहुम, उनमें इजाफ़ा हो जाता है, उनका बढ़ जाता है क्या, ईमानन, ईमान। तो बामुहारा तर्जुमा करते हैं, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर पढ़ी जाती हैं उसकी आयतें तो उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। अब किताब का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ठीक, अब आगे, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, वाव का मतलब और, आला का मतलब पर, आप जानते हो, रब का मतलब रब, और हिम अरबी ग्रामर में कौन सा लफ्ज़ है, तीसरा, क्या मतलब, वो सब। तो रब्बिहिम, उनके रब, वाला रब्बिहिम, और वो उनके रब पर, और वो उनके रब पर मतलब वो अपने रब पर, वाला रब्बिहिम, और वो उनके रब पर यानी वो अपने रब पर, यतवक्कलून, क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं यानी भरोसा करते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं। किताब से इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। तो हमने आयत नंबर 2 मुकम्मल कर ली। अब आयत नंबर 3 पढ़ते हैं, और फिर जैसे आपको मैंने रुकू के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब पूरे तौर पर बताऊंगा, तो जब उसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं तरतीब से आपको उसका जवाब बताऊंगा। अब आयत नंबर 3 पढ़ते हैं। अल्लदीना, वो लोग जो के, अल्लदीना पहले आपको बता चुका हूँ, अल्लदीना वो लोग जो के, युकीमूना कायम करते हैं, युकीमूना कायम करते हैं, अस्सलात किसको, नमाज को। तो अल्लदीना युकीमूना अस्सलात, वो लोग कौन हैं, वो लोग तो वो हैं युकीमूना जो कायम करते हैं, अस्सलात किस चीज़ को, नमाज को। तो तर्जुमा क्या हुआ, वो लोग नमाज को कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा, वमिम्मा असल में मिन और मा से मिलकर बना है। तो मिन का मतलब होता है से, मा का मतलब होता है जो कुछ। वमिम्मा, मिन का मतलब हो गया क्या, से, और मा का मतलब जो कुछ, और उसमें से जो कुछ, वमिम्मा और उसमें से जो कुछ, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम। अब मैं आपको ज़रा इसकी पहचान करवा देता हूँ। रज़क़ना, रज़क़नाहुम, इसमें आखिरी लफ्ज़ आप देखिए कौन सा है, हुम। तो आप बताइए ये कौन सा लफ्ज़ है ग्रामर में, रज़क़नाहुम। हुम कौन सा लफ्ज़ है अरबी ग्रामर में, वो सब मर्द। क्या कौन सा लफ्ज़ है, वो सब मर्द। तो रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क़,
हम मतलब वो सब मर्द, और ना मतलब ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं 14 लफ्ज़ था, 14 ना मतलब हम। तो रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया है, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया है, हम उनको, व मिम्मा और उसमें से, रज़क़ना जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफ़िक़ून वो क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। लफ्ज़ी व मुहावरा दोनों हो गया। किताब का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में नेक कामों लिखा हुआ है, और जो ऊपर हमने तर्जुमा पढ़ा उसमें कहीं लफ्ज़ नेक काम का लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं था, अरबिक इसको मौजूद नहीं थी, इसलिए हमें समझाने के लिए ब्रैकेट में तर्जुमा दिया गया है। तो यहाँ तक हमने आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 का तर्जुमा पढ़ लिया। अब अगर आप रुकू के आखिर में जाके देखिए तो रुकू के आखिर में एक सवाल है। अगले पेज पर आप जाके देखिए, पेज नंबर 8 पर आप जाके देखिए, जो अगला सफ़ा इसका अत-तमारीन में पहला सवाल अस्सवालुल अव्वल वो क्या है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। तो बेटा हमने जो अभी आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 पढ़ी, इसमें ये जो सिफ़ात बयान की गई थी ये मोमिनीन की ही सिफ़ात हैं। ये सिफ़ात किसकी हैं, मोमिनीन की सिफ़ात हैं। अब आप तर्जुमा सामने रखिए, आपने लफ्ज़ी बा मुहावरा दोनों तर्जुमा देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया। अब मैं आपको निशान लगवाता हूँ कि कौन कौन सी सिफ़ात हैं, उन पर आपने निशान लगाना है। तो देखिए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, यहाँ तक बेटा एक सिफ्त है, आप नंबर 1 इसको लिख लें, यहाँ तक नंबर 1 एक सिफ्त है, क़ुलूबुहुम तक एक सिफ्त है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, इसको नंबर 2 कर दें, ये दूसरी सिफ्त है, मोमिनीन की दूसरी सिफ्त है, नोट कर लिया, ईमानन तक दूसरी सिफ्त है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये बेटा तीसरी सिफ्त है, नंबर 3 इसको कर लें, लिख लिया, ठीक। अगली आयत, आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये नंबर 4, नोट कर लिया, ये चौथी सिफ्त है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये 5वीं सिफ्त है, 5वीं और आखिरी सिफ्त है, इसको भी नोट कर लिया आपने। तो बेटा जब हमने इस रुकू के आखिर में पहला सवाल देखा था कि इस सबक में यानी सूरतुल अनफाल में मोमिनीन की कौन सी सिफ़ात या क्या सिफ़ात बयान हुई हैं या कितनी सिफ़ात बयान हुई हैं, तो आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 उसका जवाब है कि इस सूरतुल अनफाल में मोमिनीन की कुल कितनी 5 सिफ़ात बयान हुई हैं। तो मोमिनीन की इस सूरत में कितनी सिफ़ात हैं, मोमिनीन की कुल 5 सिफ़ात हैं। कितनी हैं, मोमिनीन की कुल 5 सिफ़ात बयान हुई हैं। पहली सिफ्त आपने देख लिया, मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल काम जाते हैं, डर जाते हैं, ये होगी पहली सिफ्त। दूसरी, और जब उन पर आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तीसरी सिफ्त, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। चौथी सिफ्त, वो नमाज कायम करते हैं। और 5वीं सिफ्त कि वो नेक कामों में खर्च करते हैं। अब मैं इसके हिंट्स आपको लिख देता हूँ। पहली सिफ्त, दूसरी सिफ्त, तीसरी सिफ्त, चौथी सिफ्त, पांचवी सिफ्त, तो आप देखिए पहले सिफ्त, अब मैंने ये सिर्फ उन्वानात लिखे हैं, मैंने पूरी आयत का तर्जुमा नहीं लिखा। आपने उन्वानात क्या लिखे, दिल का काम जाना, दिल का डर जाना।
दूसरा ईमान में इजाफ़ा, तीसरा अपने रब पर भरोसा, चौथा नमाज कायम करना और पांचवा नेक कामों में खर्च करना। जब ये रुकू मुकम्मल होगा तो उस वक्त मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने शार्ट क्वेश्चन का जवाब किस तरतीब से देना है। इस तरतीब से बेटा शार्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं देना कि आपने आयत नंबर 2 से तर्जुमा करना शुरू किया और आयत नंबर 3 के आखिर तक आपने बिल्कुल एक साथ सारे तर्जुमे लिख दिए। फेडरल बोर्ड में पेपर चेक करते वक्त शार्ट क्वेश्चन के सही जवाब देने का तरीका ये दर्ज नहीं है कि आपने मुकम्मल आयत का तर्जुमा लिख दिया। ये शार्ट क्वेश्चन है, तर्जुमा नहीं पूछा गया था। आप गौर कीजिए, आपसे तर्जुमा नहीं पूछा गया, तर्जुमे का सवाल अलग होता है, शार्ट क्वेश्चन का जवाब अलग होता है। ये जवाब अगरचे तर्जुमे से ही निकाला गया है, लेकिन इसके जवाब देने का तरीका ये होता है कि आपने उसके उन्वानात लिखने होते हैं और हर एक उन्वान के सामने फिर उसने आपने एक लाइन की वजाहत करनी होती है। जब ये रुकू मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपको शार्ट क्वेश्चन लिखने का पूरा तरीक़ाकार बताऊँगा। इसमें आपको मैंने बता दिया कि ये जो पहले रुकू के अंदर जो पहला सवाल था उसके उन्वानात कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपने इन उन्वानात को नोट कर लिया होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।